السلام علیکم ناظرین، ادراک نیوز آف انڈیا میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کی اہم خبر کی جانب۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین محبوب نگر بلدی حلقے 25 محلے گول مسجد کے 200 سے زائد نوجوانوں کی BRS پارٹی سے مجلس اتحاد المسلمین میں شمولیت کا ایک اجلاس کل بعد نماز مغرب HB پیلس فنکشن نزد ڈسٹرکٹ جیل محبوب نگر پر منعقد ہوا، جس میں محمد ساجد سجو کی قیادت میں 200 سے زائد نوجوانوں نے مجلس اتحاد المسلمین میں شمولیت اختیار کی۔ اس موقع پر مہمان خصوصی جابر بن سعید الجابری کوآرڈینیٹر و انچارج مجلس متحدہ ضلع محبوب نگر، محمد عبدالہادی ایڈوکیٹ صدر ضلع مجلس اتحاد المسلمین محبوب نگر، سید سعادت اللہ حسینی بلدیہ فلور لیڈر و صدر ٹاؤن مجلس نے تمام نوجوانوں کو پارٹی کھانڈوا پہنا کر شامل کیا اور مجلس اتحاد المسلمین کی تمام سرگرمیوں سے واقف کروایا اور پارٹی ڈسپلن کو قائم رکھتے ہوئے عوامی خدمات کرنے کی اپیل کی۔ اس موقع پر عبدالرشید مشتاق ڈپٹی فلور لیڈر مجلس، مزمل محی الدین کونسلر بلدیہ، محمد محبوب کونسلر بلدیہ، وحید ثنا، سید عبدالمعبود، محمد طاہر سینئر مجلسی قائد، سجو پہلوان، محمد عبدالعظیم سینئر مجلسی قائد، جمیل احمد، فاروق علی، محمد ضمیر ابتدائی صدر وارڈ 25، سید سمیر حسن القصری، صادق حسین وارڈ نمبر 40 مجلسی صدر و متحدہ ضلع میڈیا انچارج، محمد ادیب شادان قادری، محمد اشرف اور دیگر مجلسی قائدین کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ محمد ساجد سجو نے تمام مہمانوں کی گلپوشی اور شال پوشی کی اور مجلس سے وابستہ ہو کر عوامی خدمات کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اس موقع پر عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ محمد الیاس مجاہد مجلسی یوتھ لیڈر نے اجلاس کی کارروائی چلائی اور اجلاس کا آغاز قرأت کلام پاک اور نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا۔ سید سمیر مجلسی قائد نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں وہاں کے چند مناظر۔ ایسے ہی خاص اور اہم خبروں کو دیکھنے کے لیے ادراک نیوز آف انڈیا کو لائک کریں، شیئر کریں اور فالو کرنا نہ بھولیں۔ جناب مجیب شیخ صاحب سینئر مجلس سے گزارش ہے کہ وہ یہاں اسٹیج پر تشریف لائیں۔ آفریدی سلیم شہادت کر رہے ہیں۔ سامنے تشریف لائیں۔ محمد عبدالمعبود شیخ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ مجلس کی گلپوشی اور شالپوشی محمد افروز کریں۔ ادھر پلٹو۔ جناب الیاس صاحب کی گلپوشی حکیم صاحب کریں۔ سجو پہلوان صاحب، مختار صاحب، جناب حسن القصری صاحب، جلدی پوچھا جائے کہ تھوڑا کر دو گلپوشی۔ مبارکباد سجو بھائی کو مجلس میں شمولیت حاصل ہونے میں مبارک۔ محمد تقی جلدی آئیے۔ محمد فنکشن ہال میں محمد سجو بھیا کی قیادت میں نوجوانوں کی کثیر تعداد نے مجلس اتحاد المسلمین میں شمولیت اختیار کی اور فخر کے ساتھ مجلس سے وابستہ ہو گئے۔ ہماری نئے وابستگان مجلس سے اس بات کی خواہش کی جاتی ہے کہ وہ آنے والے بلدی انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے
अभी से अपने हल्के में सरगर्म हो जाएं और हर घर मजलिस के नारे के तहत मजलिस की आवाज़ को पहुँचाएँ और वोटर लिस्टों में नाम की शमूलियत का सिलसिला जारी है। ऑनलाइन भी नामों को शामिल किया जा सकता है। तो जिस ज़रूरत पड़ी है तो आप यहाँ के लोगों से मिल सकते हैं। जब तक आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा आपके हक़ राय इस्तेफादा करने का मौका नहीं मिलेगा। अब आने वाले दिनों में NRC का बहुत बड़ा मसला हमारे सामने आने वाला है, इसलिए आपका सरकारी रिकॉर्ड में नाम रहना ज़रूरी है। इसलिए वोटर लिस्ट को आप सिर्फ लीडरों की चुनने के लिए नहीं बल्कि आपने वजूद के लिए भी ज़रूरी समझकर वोटर लिस्ट को मजबूत करने का काम नाम शामिल करवाइए। और आधार कार्ड को अगर 10 साल हो गए तो उसको रिन्यू करवाइए और सरकारी रिकॉर्ड में अपने नाम को तस्दीक फरमाइए, ताकि आने वाले इंतखाबात में मजलिसी कामयाबी के साथ साथ आपकी शहरियत पर भी आया हुआ बुरा साया ढल जाए और हम सब अच्छे शहरी की तरह इस मुल्क की तरक्की में हिस्सा लें। जनाब मोहम्मद सज्जू साहब और उनके तमाम टीम ने मजलिस में शमूलियत इख्तियार की है और ये इरादा किया है कि इंशाअल्लाह न सिर्फ 25 नंबर बल्कि उसके आजू बाजू के तमाम वार्डों में मजलिस को मजबूत करेंगे और तमाम मिलजुल कर काम कर कर आगे के आने वाले जो इलेक्शंस है काउंसलर के उसमें मजलिस को एक बाहरी अक्सरियत से जिताएंगे इंशाअल्लाह। हमने भी उनसे ये कहा है कि जब तक मजलिस में रहें आप हमेशा मजलिस में क़ायम रख के काम करें और मजलिस को जिताकर तो अपने आप को मजलिस से वाबस्ता रखें और मजलिस की खिदमत जब पब्लिक की जो खिदमत है वो मजलिस का काम है, मजलिस का काम ही उसका पहचान है। इसी तरीके से आप अपने तमाम रुफ़ा जो आज मजलिस में शमूलियत इख्तियार करे हैं उन सब को लेकर घर घर जाकर मजलिस का नाम और वहाँ पर अपनी खिदमत का अंजाम देते हुए मजलिस का नाम रोशन करें और जो है आगे के लिए मजलिस की एक ताकत बनाएं और तमाम अपने महल्ले के तमाम बुज़ुर्गों, बच्चों, नौजवान और जो भी औरतें हैं उन तमाम से मिलजुल कर रह कर काम कर कर उन सब की खिदमत कर कर मजलिस को कामयाब बनाने की यानी महबूब नगर में HB गार्डन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वार्ड नंबर 25 के नौजवान शामिल हुए हैं और मैं सज्जू और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि एक ऐसी जमात है, हर एक की जमात है, तेलुगु देशम कम्मों की जमात है, कांग्रेस रेड्डियों की जमात है और आला ज़ात वालों की BJP जमात है। अगर किसी की नहीं है तो मुसलमानों की जमात नहीं है। ऐसे में नौजवान आज बढ़ चढ़कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो रहे हैं और एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मुसलमानों की आवाज़ है, दलितों की आवाज़ है, बिछड़ों की आवाज़ है, आदिवासियों की आवाज़ है। ये जो है जहाँ भी किसी पर जुल्म और ज़्यादती होती है तो सबसे पहले आवाज़ उठाती है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आप देखिए STs का मामला पार्लियामेंट में आया तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाज़ उठाई। इसी तरीके से हर मुसलमानों के मसाइल पर आवाज़ उठाती है और जो है महबूब नगर के अंदर जो भी मसाइल पैदा होते हैं, चाहे जानवरों के मसाइल हो, चाहे दरगाहों के मसाइल हो, चाहे ख़बरस्तान के मसाइल हो, और तमाम मसाइल को हल करती है और नुमाइंदगी करके हल करती है। जब भी कहीं नौजवान के ऊपर केसेस बुक होते हैं तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनको अदालत से फ्री छुड़ाती है और जो है पुलिस स्टेशनों में जो मुलविस होते हैं उनको नौजवानों को रिहाई कराने में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगे रहती है। बेखुसूर मुसलमानों के साथ हर वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगे रहती है। इसलिए मैं तमाम महबूब नगर के मुसलमानों से और SC/STs से और आदिवासियों से मैं ख्वाहिश करता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शामिल हुए। आज एक ऐसी जमात है, सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिवाय कोई ऐसी जमात नहीं है। ये मुसलमानों की मताए अजीज़ जमात है। लिहाजा मैं नौजवानों से, ख़वातीन से, बुज़ुर्गों से ख्वाहिश करता हूँ कि बढ़ चढ़ कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शामिल हुई। अब आने वाले बल्दिया इंतखाबात में तमाम पार्टियों का आपने वोट दिया है कि आपने MLA इलेक्शन में और BJP इलेक्शन में कांग्रेस और TRS को वोट दिया है।
बीजेपी को वोट दिया है। अब सिर्फ हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ही इलेक्शन लड़ती है, वो बल्दिया का इलेक्शन है, इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हक़ है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हक़ है, आपका भी हक़ है, क्योंकि आपकी खिदमत करती है हमेशा आपके दरमियान में रह के। इसलिए मैं आप तमाम से ख्वाहिश करता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ दीजिए और उसके साथ जुड़ जाइए। आपके मसाइल को हर वक्त हल करने की इंशाअल्लाह हम हद्दल इम्कान कोशिश करेंगे कि, और जहाँ भी आपका मसला पैदा होता है तो सबसे पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहुँचेगी। नंबर 25 मोहम्मद ज़मीर, तमाम कायदीन, आदिल साहब, जाबिर साहब, सादत साहब और जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ज्वाइन हुए उन सबका मुबारकबाद पेश करता हूँ। तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। मजलिस को खुदा हाफिज़, मजलिस को मजबूत कीजिए।